Okay, so students, namaskar. Let's start the new chapter, which is known as How do organism reproduce? And usually 7 to 8 marks questions come from this chapter. Okay? So how do organism reproduce? Now first of all you should understand what is the term reproduction means. Reproduction का मतलब क्या होता है? Reproduction means to maintain the species, the number of species. Suppose some kind of species is there, until and unless it will not reproduce the same kind of offspring, eventually they will die, because nobody is immortal. Everybody has its lifespan. Afterwards, everyone dies. To maintain the continuity of their species, the parents will give rise the same kind of offspring. So this is known as reproduction. ठीक है? तो पेरेंट्स से उसके जैसे ऑफस्प्रिंग होना, ओके, न्यू प्रोजेनीज डेवलप करना, दैट इज नोन एज रिप्रोडक्शन. और रिप्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द स्पीशीज एंड टू सस्टेन द लाइफ. ओके, बिकॉज नो बडी इज इमॉर्टल, इवेंचुअली दे हैव टू डाई आफ्टर सम टाइम. तो अपनी स्पीशीज को वो करना, लाइक हम बोलते हैं तुम्हारे फोर फादर्स ऐसे थे, फिर उनके ग्रैंड फादर ऐसे थे, फिर ये ऐसे थे, ये ऐसे थे. तो क्यों? बिकॉज वी आर मेंटेनिंग आवर जनरेशंस. How does? By the process known as reproduction. When it comes for plants or animals, the reproduction of basically two types. Okay, it is asexual reproduction and a sexual reproduction. Okay, asexual reproduction in name indicates, as the name indicates, means any one individual is required. It is not required both male and female. Any one can give rise the new progeny from any of its part. So then it is known as asexual reproduction. Sexual reproduction, when both the male and female are required, and after fertilization they give rise a new progeny. Asexual and sexual reproduction. So asexual means any one parent is required and they give rise the new progeny by any of the part of their body. Okay, and sexual reproduction, both the parents are required. This is the very first difference out both of them. Second difference, the in asexual reproduction, the new organism is a exact copy of the parent. जैसा पेरेंट है बिल्कुल आइडेंटिकल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बनता है. बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस कैन बी देयर. It is not necessary it is an identical copy of its parents, although the parents have given rise the progeny, but it is not identical, so variations can be there. Okay, asexual reproduction, it's a fast process. Sexual reproduction, it takes little time. Okay, in comparison to this, it is a simple process. Asexual reproduction, it is a simple process, but sexual reproduction, it is a complex process. So these are the major difference between asexual and sexual reproduction. Okay, now let's start what is asexual reproduction and what are its type. So one after one we are going to discuss कि asexual reproduction के हमारे types कौन कौन से होते हैं. Let's start with the very simple one, which is known as fission. Now learn this term very often. This is very simple term. मैंने आपको पहले भी एक टर्म बताई थी, लाइसिस. जब भी किसी वर्ड के साथ लाइसिस जुड़ जाता है, दैट मीन्स उसका टूटना. यहाँ मैं बोल रही हूँ फिशन. फिशन का मतलब भी क्या होता है? टूटना. कोई चीज आपकी ब्रेक हो रही है, दैट इज फिशन. इसका ऑपोजिट होता है फ्यूजन. कि चीज जुड़ रही है
और बन रही है, देन इट इज नोन एज फ्यूजन। अब यहाँ मैं फिशन कर रही हूँ तो इट इज ऑफ टू टाइप्स, वन इज बाइनरी फिशन एंड द अदर वन इज मल्टीपल फिशन। बाइनरी फिशन एंड मल्टीपल फिशन। सो जब ऑर्गेनिज्म है एक से टूट कर दो नई ऑर्गेनिज्म देता है, देन इट इज नोन एज बाइनरी। बाइनरी मीन्स टू। पढ़ते हैं ना कंप्यूटर में बाइनरी नंबर्स, क्या होते हैं बाइनरी नंबर्स? 0 एंड 1। तो ये 0 एंड 1 जो हम बोल रहे हैं, दैट इज, तो फिशन आर ऑफ टू टाइप्स, बाइनरी एंड मल्टीपल फिशन। अब वन आफ्टर वन वी आर गोइंग टू डिस्कस। पहले डिस्कस करते हैं हम बाइनरी फिशन क्या होता है। बाइनरी मीन्स पेरेंट ऑर्गेनिज्म से हम दो न्यू ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, विच इज नोन एज बाइनरी। सो इफ अ पेरेंट ऑर्गेनिज्म गिव राइज two new organism through asexual reproduction, then it is known as binary fission. Now best example of binary fission is amoeba. Now amoeba is unicellular organism, irregular in shape. How does it happen? ये देखिए, this is amoeba and this is nucleus. So how does it will start? First of all, the nucleus will make its copy. Okay, it start with the nucleus which is going to make its own copy. So gradually after some time you will see, then there will be a two nucleus in a body and in amoeba, and later on the constriction of their cell wall will start. ऐसे ये constriction शुरू हुआ, ठीक है, एक न्यूक्लियस इधर आ गया, एक न्यूक्लियस इधर आ गया, and as and when this constriction will start moving, what will happen? It will give rise to offspring, and it is somehow identical to the parent organism. So this is known as binary fission. This is amoeba, cell membrane, cytoplasm, nucleus. So how does it start? First of all, nucleus will start making its copy, and then when nucleus make its copy, what will happen? Constriction of the cell membrane will start, and this constriction will meet up some point, and it will divide the parent into two offspring which is identical to the parent. So this is known as binary fission. Okay, and it occurs in amoeba. Okay, अब हम आते हैं मल्टीपल फिशन में. अब मल्टीपल फिशन एज द नेम इंडिकेट, दो से ज्यादा कॉपी बनती है. और वो कॉपी कैसे बनती है? एक पेरेंट ऑर्गेनिज्म है और इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस डेवलप हो जाते हैं, एंड आफ्टर सम टाइम इट विल बर्स्ट. ऐसे बर्स्ट हो जाएगा, ठीक है, इट बिकम्स burst and nucleus will come out, and each nucleus will give rise new progeny. ठीक है, दिस इज मल्टीपल फिशन. अब ये किस में होता है? प्लाज्मोडियम, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मलेरिया. मलेरिया के लिए जो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल होता है दैट इज प्लाज्मोडियम. ओके, एंड उसमें जो फिशन, उसमें जो रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज मल्टीपल फिशन. ओके, दिस इज अबाउट फिशन. अब नेक्स्ट रिप्रोडक्शन का मेथड है दैट इज बडिंग, एंड द एग्जाम्पल ऑफ बडिंग इज हाइड्रा. ओके, अब ये पता करना है, बडिंग मीन्स ऑन द मेन पेरेंट ऑर्गेनिज्म देयर इज अ बड विल डेवलप. एक छोटी बड मीन्स, बड हमें पता ही है, पौधों में अपन पढ़ते हैं बड. सो स्मॉल बड विल डेवलप, and the same kind of cytoplasm and everything reach to that bud, and that bud will detach from the parent body and give rise the new organism. ये है हमारा हाइड्रा. ठीक है, this is hydra. Now what will happen? This hydra will start developing an outgrowth on its body. अपनी बॉडी के बाहर एक outgrowth बनेगी which is known as bud. Now later on this bud will increase in size and look like same somehow at hydra, and all the cytoplasm, everything will be exchanged from this, and later on it will detach and develop into new individual. So this is known as budding. Now budding में दो तरीके की चीजें हो सकती है.
So the new individual develop on outgrowth on parents body is known as budding. अब इस बडिंग में दो तीन चीजें हो सकती है. कभी कभी क्या होता है, ये बर्ड डिटैच हो जाती है और कभी डिटैच ना होकर अब ये बडिंग में कभी कभी क्या होता है, ये डिटैच हो जाती है, कभी कभी डिटैच ना होकर पेरेंट ऑर्गेनिज्म पे ही रहती है, बट इट इज अ कंप्लीट इंडिविजुअल एंटाइटी. सो दिस इज बडिंग. नेक्स्ट मेथड हम डिस्कस करते हैं विच इज फ्रेगमेंटेशन. तो पहला मेथड हमने क्या पढ़ा था, दैट वाज फिशन, सेकंड वाज बडिंग, नाउ कम टू फ्रेगमेंटेशन. फ्रैगमेंट्स मतलब छोटे छोटे हिस्सों में टूटना, फ्रैगमेंट्स होना. एंड दिस इज बेसिकली एग्जांपल ऑफ एल्गी. एल्गी क्या होता है, अच्छा हमने एक्वेटिक एरिया देखा है, पॉन्ड्स वगैरह देखे हैं, उसके आसपास ग्रीन ग्रीन जमा रहता है, तो क्या बोलते हैं, काई. काई का ही बॉटनिकल नेम होता है एल्गी, उसको इंग्लिश में और यू कैन से इन साइंस लैंग्वेज इट इज नोन एज एल्गी. अब वो एल्गी कितना रैपिडली डिवाइड करता है, और वो डिवाइड कैसे करता है, थ्रू एसेक्सुअल मेथड. और वो एसेक्सुअल मेथड कौन सा होता है, फ्रेगमेंटेशन. ये एल्गी एक रिबन जैसा होता है, ठीक है. एग्जाम्पल क्या हो गया, स्पाइरोगायरा, इट इज एन एल्गी. अब ये रिबन जैसे हुआ, ठीक है. अब ये रिबन क्या करेगा, मोर देन 2 पार्ट में क्या हो जाएगा, डिटैच, ऐसे फ्रैगमेंट्स में टूट जाएगा. तो इसके फ्रैगमेंट बन गए 1 2 3, एंड ये ईच फ्रैगमेंट विल गिव राइज अ न्यू एंटाइटी, एक न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाएगा. सो दिस इज नोन एज फ्रैगमेंटेशन. अब नेक्स्ट मेथड है रीजेनरेशन. रीजेनरेशन प्लेनेरिया में भी कभी कभी देखने को मिलता है और कभी कभी हाइड्रा में भी देखने को मिलता है. अब दिस इज समथिंग यूनिक थिंग. कभी एक्सीडेंटली व्हाट विल हैपन, देन ऑर्गेनिज्म इज कट डाउन इनटू स्मॉल स्मॉल पार्ट. एक्सीडेंटली क्या हुआ, वो छोटे छोटे पार्ट में कट गया. तो ईच पार्ट जो है दैट विल डेवलप इनटू ए न्यू ऑर्गेनिज्म विच इज नोन एज रीजनरेशन. तो ये प्लेनेरिया में भी देखने को मिलेगा और ये हमें देखने को मिलेगा हाइड्रा में भी. हाइड्रा में हमने एक और पढ़ा था, हाइड्रा में हमने एक और पढ़ा था दैट इज बडिंग, ठीक है. उसमें रीजनरेशन भी हो सकता है. तो जो लॉस्ट बॉडी पार्ट्स हैं उससे पूरा न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाना, ठीक है. ये प्लेनेरिया है, ठीक है, इसको मैंने ऐसे कट कर दिया. तो यहाँ एक पोर्शन तो ये है, एक पोर्शन ये है और एक पोर्शन ये है, 3 पोर्शन हो गए, 1 2 3. नाउ ईच पोर्शन विल डेवलप, लॉस्ट बॉडी पार्ट के ईच पोर्शन से न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाएगा. इट इज नोन एज रीजनरेशन. वापिस बता रही हूँ क्या किया, ये प्लेनेरिया था, ये ऐसे कट हो गया. सो 3 पोर्शन बन गए, दिस इज फर्स्ट पोर्शन, दिस इज सेकेंड पोर्शन, दिस इज थर्ड पोर्शन, एंड ईच पोर्शन विल गिव राइज न्यू ऑर्गेनिज्म. इट इज नोन एज रीजनरेशन. रीजनरेशन का एक और एग्जाम्पल होता है स्टारफिश. स्टारफिश देखिए सबने, ठीक है, ऐसे स्टारफिश होती है. अब उसमें क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा डेवलप ऑर्गेनिज्म नहीं होते, मीन्स दे आर नॉट कम्प्लीटली डेवलप ऑर्गेनिज्म लाइक प्लेनेरिया एंड ऑल, उनमें टिश्यू लेवल का ही स्ट्रक्चर होता है. बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखें तो टिश्यू लेवल की ही होती है, तो उनमें रीजनरेशन अच्छे से दिखता है. अब यहाँ पे किसी पार्ट से लिमिटेड रहेगा, ठीक है. स्टारफिश हुआ तो इसके एक पार्ट से ही लिमिटेड रहेगा, ठीक है. फ्लैटवर्म हुआ तो इसके भी एक पार्ट से ही लिमिटेड रहेगा. अब इसकी सपोज ये वाली जो आर्म है ये डिटैच हो गई एक्सीडेंटली, सो आफ्टर सम टाइम ये ऐसा हो जाएगा, एक इसकी ये डिटैच हो गई है, ठीक है, दिस रिमेन डिटैच, ऐसे ये डिटैच हो गई, बट आफ्टर सम टाइम इट विल स्टार्ट अगेन, इट विल डेवलप. सो दिस इज वन काइंड ऑफ रीजनरेशन अकर्स इन स्टारफिश. ऐसा सेम रीजनरेशन का एग्जाम्पल कौन होता है, लिजर्ड. ओके, लिजर्ड को क्या करते हैं, हम पकड़ते हैं, कभी कभी मारते, तो क्या करती है, अपनी पूंछ तोड़ देती है, एंड कुछ टाइम बाद ये सेम वही लिजर्ड दिखती है, तो हमें दिखता है उसमें छोटी सी पूंछ निकल रही है, उसकी वापस ग्रोथ हो गई है. तो दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ रीजनरेशन. लिजर्ड हैज ऑर्गन लेवल ऑफ सिस्टम, है ना, डेवलपमेंट इज कॉम्प्लेक्स.
सो उसका जो ये रीजनरेशन वाला फंडा है वो कहाँ तक लिमिटेड है, केवल टेल तक। उसके आगे यदि उसका कोई प्रॉब्लम हो गया, यदि आगे से उसका कोई कटिंग हो गई या आगे का मुंह वो गड़बड़ हो गया, तो फिर वापस रीजनरेशन नहीं होगा। इट इज लिमिटेड टू टेल एरिया ओनली। सो रीजनरेशन जैसे जैसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होता है, इट इज लिमिटेड टू सर्टेन एरियाज ओनली। एंड ह्यूमन बींग्स देयर इज नो रीजनरेशन। उंगली गई तो गई, वापस आएगी नहीं। ओके, सो दीज आर रिलेटेड टू सर्टेन एरियाज ओनली। अब एक और जो इंपॉर्टेंट है, दिस इज नेक्स्ट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ओके, दिस इज बेसिकली अकर इन प्लांट्स। प्लांट के किसी भी पार्ट से न्यू पौधा बनाना, न्यू प्लांट बनाना, दैट इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। Now we are going to study again the vegetative propagation. ओके, सो प्लांट के किसी भी पार्ट से, स्टेम से, लीफ से, ओके, और रूट से, किसी से भी पार्ट से यदि न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है तो देन इट इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब दिस इज आर्टिफिशियली ऑल्सो डन। हम आर्टिफिशियली भी वेजिटेटिव प्रोपगेशन करवा सकते हैं, और इट इज डन नेचुरली ऑल्सो। अब नेचुरली के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, लाइक पोटैटो। पोटैटो को हम कुछ टाइम रख देते हैं तो उसके ऊपर कुछ ग्रोथ हो जाती है, और पोटैटो के ऊपर हमें कुछ ऐसे ही दिखते हैं, ये पोटैटो है तो ऐसे ऐसे कुछ उसमें निशान दिखते हैं। दिस इज नोन एज आई ऑफ पोटैटो, एंड दिस इज द प्लेस फ्रॉम वेयर द आउटग्रोथ कम आउट। इसमें से इस वाली जो जगह है यहाँ से कुछ आउटग्रोथ आती है, एंड दिस इज नोन एज पोटैटो ट्यूबर। तो एक टाइम के बाद उसमें से क्या वो डेवलप होने लग जाएगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। पोटैटो क्या है, इट इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ स्टेम। तो यहाँ स्टेम से अपन ग्रोथ डेवलप कर रहे हैं, जिसे बोलते हैं पोटैटो ट्यूबर, और इससे हमारा हो रहा है, दैट इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब और क्या हुआ, क्रोटोन्स वगैरह हुए, उनकी कोई एक डाली तोड़ी, तो एक ब्रांच तोड़ी और लगा दी, लाइक मनी प्लांट। मनी प्लांट की एक छोटा सा स्टेम का टुकड़ा तोड़ा, and then we have to put it in the water. After some time we'll see that the two roots will come out. So that is also an example of vegetative propagation through stem. Okay, the third one, that is bryophyllum, जिसको बोलते हैं पत्थर चिट्टा। उसमें क्या होता है, उसके लीव्स के, लीफ होती है, लीफ के यहाँ पे छोटी छोटी आउटग्रोथ निकल जाती है, लीफ के उसमें छोटी छोटी आउटग्रोथ निकल जाती है, और ये छोटी छोटी आउटग्रोथ में से छोटी छोटी लीव्स आती है, एंड फ्रॉम विच it will develop into more and more plants. Okay, so this is also an example of vegetative propagation. अब bulbs की बात करें तो onions होता है, उससे बन जाता है, plantlet से बन जाता है। So these are the different example जो naturally होते हैं, ठीक है। rhizome क्या होता है, जिंजर को भी अपन लगा दें, then it is also developed into a new plant. Okay, so these are the things by which naturally vegetative propagation can occur. Naturally you can develop into new plants, और नए plants होते हैं। Artificially हम देखें तो सबसे पहला जो मेथड मैं आपको बताऊंगी, that is grafting, ठीक है। So let's discuss what is all about grafting. Grafting means मुझे इस प्लांट का शूट पसंद आ रहा है कि ऐसी तो लीव्स होनी चाहिए, और इस प्लांट का मुझे फ्लावर समझ में आ रहा है, और मैं दोनों कैरेक्टर एक में चाहती हूँ, और मैं ये आर्टिफिशियली करना चाहती हूँ, देन इट इज नोन एज ग्राफ्टिंग। अब ग्राफ्टिंग में क्या करेंगे, एक प्लांट ये लिया, दूसरा प्लांट ये वाला लिया, सपोज दिस इज 1 and 2 प्लांट, इसको मैंने ऐसे कट किया दोनों को, इसका पार्ट 1, इसका पार्ट 2, मैंने दोनों को क्या किया, फिक्स किया आर्टिफिशियली। ये वाला 1 और ये 2 मैंने आर्टिफिशियली इसको फिक्स कर दिया। कैसे किया, विद द हेल्प ऑफ थ्रेड, विद द हेल्प ऑफ क्लोथ। मैंने दोनों को एक ही तरीके से काटा, उनकी शेप ऐसे दी कि दोनों ऐसे फिक्स हो जाए, और फिक्स होते ही उनको मैंने क्लोथ से और किसी से कवर कर दिया। आफ्टर सम टाइम व्हाट विल हैपन,
इधर इसका साइटोप्लाज्म उधर का साइटोप्लाज्म दोनों आपस में मिक्स होंगे, सेल्स विल आल्सो मिक्स अप एंड इट विल डेवलप इनटू वन प्लांटलेट. सो दिस इज नोन एज ग्राफ्टिंग. यूजुअली अकर इन रोजेज. रोजेज में अपन करते हैं तो the portions of the two plants get mixed, then it is known as grafting. okay, अब ग्राफ्टिंग में जो ऊपर वाला जो पोर्शन होता है, जिसका ऊपर वाला पोर्शन लेते हैं उसको बोलते हैं सियोन, और नीचे वाला पोर्शन जिसको बोलते हैं उसको बोलते हैं स्टॉक. ठीक है, दोनों को मिलाओ और दोनों को मिला के एक टाइप का पौधा बना दो, देन इट इज नोन एज ग्राफ्टिंग. उसके अलावा एक और जो हम आर्टिफिशियली करते हैं वो बोलते हैं कटिंग. कोई एक प्लांट की कटिंग ली और लगा दी और वो डेवलप हो गया, देन इट इज नोन एज कटिंग. तो कटिंग के थ्रू भी कर सकते हैं. उसके अलावा एक पोर्शन होता है लेयरिंग. लेयरिंग में क्या होता है, एक प्लांट लिया मैंने, इसमें एग्जाम्पल मैं मनी प्लांट का दे सकती हूँ, क्रोटोन का दे सकती हूँ. ठीक है, इन सब के क्या करी, मैंने एक छोटी सी डाली तोड़ी और लगा दी और पौधा बन गया. ठीक है, मैंने ये आर्टिफिशियली किया, खुद तो टूटी नहीं, तोड़ के मैंने लगाई है. लेयरिंग में क्या होता है, सपोज एक प्लांट है, उसकी एक ब्रांच है, वो बहुत ज़्यादा, द ब्रांचेज आर नॉट वेरी स्टडी, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होती, एंड इट इज़ नियर टू द ग्राउंड. तो मैं क्या करूँगी, इस ब्रांच को, ये जो नीचे वाली ब्रांच है, इसको धीरे से मैं इस ग्राउंड में ले जाऊँगी, एंड ग्राउंड में ले जाते ही आफ्टर सम टाइम इट विल डेवलप्स रूट ओवर हियर एंड इट विल गिव राइज अ न्यू प्लांट. सो देन इट इज़ नोन एज लेयरिंग. सो ये लेयरिंग वाला जो पोर्शन है दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन. ओके, सो जो मेथड हमने वेजिटेटिव प्रोपगेशन का पढ़ा, अब एक लास्ट मेथड है जो है स्पोर फॉर्मेशन. दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. स्पोर फॉर्मेशन, ब्रेड मोल्ड. मैंने क्या किया, ब्रेड ली और ब्रेड थोड़ी सी मॉइस्ट थी और बाहर रख दी. बाहर लगने के बाद उसमें क्या लगेगा, मुझे फंगस दिखेगा. अचार वगैरह में, सब में, पिकल्स वगैरह में फंगस हो जाते हैं. तो हाउ दे आर डेवलपिंग, हाउ दे आर रिप्रोडक्टिंग, बाय एसेक्सुअल मेथड विच इज नोन एज स्पोर फॉर्मेशन. प्लांट के ऊपर क्या होता है, फंगस वगैरह के ऊपर एक डेवलप होता है दैट इज नोन एज स्पोरेंजियम, एंड स्पोरेंजियम के अंदर बहुत सारे स्पोर्स डेवलप होते हैं, एंड आफ्टर सम टाइम दिस स्पोरेंजियम विल बर्स्ट. ये क्या होगा, ऐसे बर्स्ट हो जाएगा, और बर्स्ट होते ही इसमें से बहुत सारे स्पोर्स बाहर निकल जाएंगे, एंड ईच स्पोर्स विल गिव राइज अ न्यू फंगस. दैट इज व्हाई द ग्रोथ इज वेरी रैपिड एंड इट इज नोन एज स्पोर फॉर्मेशन, स्पोरेंजेनेसिस भी बोलते हैं. एक और खासियत होती है, इफ द स्पोर इज देयर and the conditions are adverse. Adverse means the condition is as per not the requirement of the organism, then it will remain in the same area, वैसा का वैसा रहेगा. It will wait till the conditions are favorable. It will become favorable for him, and then the bursting will occur, and then it will develop into a new plant. So these are all the methods related to vegetative propagation. अब एक बार रिवाइज कर ले. So first one was budding, first one was fission, okay, binary and multiple fission. Next हमने पढ़ा था budding, that is in hydra, outgrowth develop हुई. Then third one was fragmentation. Fourth one was fragmentation. Fourth one was regeneration. एंड स्टारफिश का एग्जाम्पल दिया था विच इज लिमिटेड टू सर्टन एरिया. ठीक है, उसके बाद में फिफ्थ वन वाज वेजिटेटिव प्रोपगेशन. वी हैव डिस्कस्ड इट कैन बी डन आर्टिफिशियली, इट कैन बी डन नेचुरली, एंड दीज आर द सम एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल वन. एंड द लास्ट वन वाज स्पोर फॉर्मेशन. अब एक और जो इम्पोर्टेंट है दैट इज टिश्यू कल्चर. कभी कभी पूछ लेते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है, पर इसमें आपको पता होना चाहिए. तो क्वेश्चन कम फ्रॉम टिश्यू कल्चर. टिश्यू कल्चर मीन्स मैंने प्लांट का एक छोटा सा पार्ट लिया, उसको मैंने लैब में एक उसकी फेवरेबल कंडीशन में वॉट एवर थिंग्स आर रिक्वायर्ड, सपोज उसको इतना सोडियम चाहिए, पोटेशियम चाहिए, एक ब्रोथ में डेवलप किया, देन इट विल बी ट्रांसफर टू आउटसाइड ऑफ द लैब, देन इट इज़ नोन एज टिश्यू कल्चर. मैंने क्या लिया, एक अनडिफ्रेंशिएटेड मास ऑफ सेल बना लिया,
और उस सेल को वेट किया कि इट शुड डेवलप इन अ स्मॉल प्लांटलेट इन द लैब्स। तो मैंने आर्टिफिशियल कंडीशंस में काम किया, एंड एज एंड व्हेन इट डेवलप्स इन अ स्मॉल प्लांटलेट, तो छोटी प्लांटलेट में डेवलप होते ही मैंने क्या किया उसको, आई ट्रांसफर दिस टू द क्रॉप एरिया और फील्ड एरिया वेर आई वॉन्ट इट शुड ग्रो मोर एंड मोर, then it is known as tissue culture. So it is completely an artificial method. Okay, so and these all are the vegetative these all are the methods of asexual reproduction in plants as well as in animals. Okay. So this is all about, अब हमने पढ़ लिया है asexual reproduction. Now let's start sexual reproduction in plants. Plants में sexual reproduction कैसे होता है? Obviously प्लांट में भी फर्टिलाइजेशन होता है, तो इसमें कुछ टर्म्स जो हैं हमें समझने की है, एंड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल इन व्यू ऑफ एग्जाम्स ऑल्सो। एग्जाम्स में भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन मीन्स बोथ मेल एंड फीमेल आर रिक्वायर्ड एंड देन इट विल गिव राइज ए न्यू प्रोजेनी। ठीक है, तो जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो हाफ मेल से आता है, हाफ फीमेल से आता है, और दोनों मिलके उसको वापस कंप्लीट करते हैं, एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। सो दिस इज व्हाट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंड इट इज ऑल्सो गिव राइज वेरिएशन ऑल्सो। Variations are why important because if any changes in the surrounding, it makes that organism, it makes that plant compatible to that environment. Adaptability बढ़ाने के लिए variations बहुत important है. Okay, for the continuity of the species, for adaptability, for sustaining the life, that variations plays very important role. And sexual reproduction variations can occur because sometimes may be error in the DNA copying. Although DNA की जब copy होती है तो error free mechanism होता है, but sometime it can be changed. Okay, and because of this variation arises, and which is good for us as well. So sexual reproduction जो होता है in plants में by the means of flower. So flower is the sexual reproduction, means sexual reproduction जो होता है, that reproductive organ of a plant is a flower. And you should know कि flower जो है, because of this only the sexual reproduction is possible in animals, sorry, in plants. ठीक है, सो फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट। अब फ्लावर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि फ्लावर में क्या क्या पार्ट्स होते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ चाइना रोज। चाइना रोज, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। व्हाट इज द बॉटनिकल नेम ऑफ चाइना रोज? हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। और उसका नॉर्मल नेम क्या बोलते हैं? गुड़हल। गुड़हल का फूल सबने देखा है, व्हाइट भी होता है, रेड भी होता है। लेट्स मेक इट क्विकली। ऐसे ही होता है। दिस इज चाइना रोज। ओके, अब ये चाइना रोज है। अब लेट्स डिस्कस व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। ओके, फ्रॉम द प्लेस वेयर इट इज बीइंग अटैच्ड विद द स्टेम इज नोन एज पेडिसिल। ओके, पेडिकल भी बोलते हैं, स्टॉक भी बोलते हैं। नाउ दीज आर द स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट नियर हियर, विच इज नोन एज सेपल्स। ओके, the colorful part is known as petals. This is known as, what do we call it? Stamen. And this whole part is known as pistil. Other name is known as carpel. अब इसी में ही सब कुछ छुपा है। कैसे? And this swollen part, कभी कभी पूछ लेते हैं
वैसे 10th में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. दिस सोलन पार्ट इज नोन एज थैलेमस. ओके, अब देखो ध्यान से. ठीक है, each flower has 4 rolls. कितने rolls? 4. How many rolls are there? 4 rolls. ठीक है, 4 rolls means 4 cycle मान लो. इजी टर्म्स में समझाऊं तो दैट मीन्स इट हैज 4 साइकिल. 4 साइकिल होते हैं. द आउटर मोस्ट साइकिल इज मेड अप ऑफ सेपल्स. सेपल्स ग्रीन लीफी लाइक स्ट्रक्चर. आउटर मोस्ट रोल्स जो होता है दैट इज सेपल. ओके, एंड ऑल टुगेदर सेपल इज नोन एज कैलिक्स. मीन्स 4 सेपल्स हो, 5 सेपल्स हो, सबको एक साथ क्या बोलते हैं? कैलिक्स. So first outermost roll is known as calyx. So outermost is calyx. अब उसके बाद में colorful leaves are present which is known as petals. So all together petals is known as corolla. So second roll is corolla. Okay, the third one which is known as stamen, ये वाला portion which is known as stamen, the complete one, यहाँ से लेकर यहाँ तक, which is known as stamen. The stamen is male reproductive part of a flower. Okay, so this is male reproductive part. This is our third roll or third cycle. And the fourth cycle, which is the innermost one, ये वाला portion जो दिख रहा है, ये वाला portion, this is the innermost part, which is a female reproductive part. Okay, so this is fourth roll. If any flower contains all 4 rolls, then it is known as a complete flower. ठीक है, कितने रोल्स बताए मैंने? 4 रोल्स बताए. चारों रोल्स, outer most is calyx, then corolla, then male reproductive part, and then female reproductive part. Okay, male reproductive part is stamen. Okay, and female reproductive part is pistil और कार्पेल. जिसमें ये चारों रोल्स प्रेजेंट होते हैं, देन इट इज नोन एज अ कंप्लीट फ्लावर. लाइक दिस चाइना रोज बना रखा है, इट इज अ कंप्लीट फ्लावर. यदि किसी में सपोज सेपल्स नहीं है, या किसी में केवल मेल या फीमेल रिप्रोडक्टिव में से एक है, कोई सा भी एक रोल प्रेजेंट नहीं है, देन इट इज नोन एज अ इनकम्प्लीट फ्लावर. ओके, वन इज कंप्लीट, अनदर वन इज इनकम्प्लीट फ्लावर. तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ रोल्स, the flowers are divided into 2 types. It can be complete, it can be incomplete. Okay, पहला तो ये. दूसरा, फ्लावर बनाया हमने. अब फ्लावर में हमने बताया मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी प्रेजेंट है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी प्रेजेंट है. दोनों प्रेजेंट होंगे, then the flower is known as a bisexual flower. Means if both are present, then it is known as a bisexual flower. If either one is present, either this or this, दोनों में से कोई एक प्रेजेंट है, either male reproductive or either female reproductive, then the flower is known as unisexual flower. ठीक है, या तो ये प्रेजेंट होगा या फिर ये प्रेजेंट होगा. दोनों प्रेजेंट नहीं होंगे. दोनों प्रेजेंट है, so then it is a bisexual flower. ये भी प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट है, और एक प्रेजेंट है दोनों में से, देन इट इज अ यूनिसेक्सुअल फ्लावर. या तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा. अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स देखते हैं. मैंने ऐसे बनाया था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ओके, सो दिस इज नोन एज एंथर एंड दिस स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज फिलामेंट. सो द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यूजुअली हैव 2 पार्ट्स. दिस इज नोन एज एंथर or the other one is known as filament. Anther is the part where formation of pollen grains occur. इसके अंदर pollen grains develop होते हैं. Okay, तो pollen grains जो develop होते हैं वो anther में होते हैं. And after pollen grain formation, ये क्या होता है? burst हो जाता है. तो pollen grain क्या हो जाते हैं? एकदम से बाहर निकल जाते हैं. ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मैंने कुछ ऐसा बनाया था. ठीक है, ठीक है. अब ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के 3 पार्ट्स होते हैं. द आउटर मोस्ट स्टिकी पार्ट, जो बाहर का बिल्कुल स्टिकी पार्ट होता है, विच इज नोन एज स्टिग्मा. ये वो पार्ट है जहां पे पोलन ग्रेन्स आके ऐसे स्टिक होते हैं. दिस इज स्टिग्मा. देन देयर इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच इज नोन एज स्टाइल,
एंड द इनर मोस्ट सोलन पार्ट इज नोन एज ओवरी, और इसके अंदर जो ये प्रेजेंट होता है दिस इज नोन एज ओव्यूल्स. ठीक है, सो दिस इज अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट. ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं. यहां तक आगे होगा समझ में? रिपीट करूं? आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीवन. अभी करेंगे वापस रिपीट. ओके, अब हमने ये पढ़ लिया. अब दूसरी बार क्या होता है, पोलन ग्रेन्स स्टाइल और स्टिग्मा तक पहुंचे कैसे. सो देन इट इज नोन एज pollination. So reaching of pollen grain towards the female reproductive part of the flower. Okay, so this is known as pollination. Pollination means the movement of pollen grain from anther to stigma is known as pollination. Now this pollination can be cross pollination and self pollination. दो तरीके से हो सकता है. पॉलिनेशन क्रॉस भी हो सकता है, सेल्फ भी हो सकता है. अब देखिए बहुत इजी है इसको समझना, वेरी इजी. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट सेल्फ, ये एक फ्लावर है. इफ द pollen grains of this flower reaches to the same stigma of the same flower, एक फ्लावर है, उसी के पोलन ग्रेन्स निकल के उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे पहुंच गए, देन इट इज नोन एज सेल्फ पॉलिनेशन. ठीक है, और क्रॉस पॉलिनेशन, यहाँ एक फ्लावर है, यहाँ पे दूसरे प्लांट का फ्लावर है, इसके पोलन ग्रेन निकल के दूसरे प्लांट के फ्लावर पे पहुंच गए, देन इट इज नोन एज अ क्रॉस पॉलिनेशन. अब इसमें एक बात ध्यान रखने की है, रोज के पोलन ग्रेन रोज पे जाएंगे तो ही आपका आगे का प्रोसेस होगा. If it is goes to sunflower or any other flower, the further process will not occur because they will reject them to identify, yes, these are the stranger. We should not go for fertilization further. Okay? So if same flower के पौधे से same flower का pollen grain उसी flower के pistil पे आ जाता है, then it is known as self pollination. और इस फ्लावर का, ठीक है, एक प्लांट के फ्लावर का पोलन ग्रेन दूसरे प्लांट के फ्लावर पे आ गया तो उसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन. इसमें एक और कंडीशन है, एक ही प्लांट पे दो फ्लावर हो गए और इसका पोलन ग्रेन निकल के इस पे पहुंच गया तो भी उसको बोलेंगे हम क्रॉस पॉलिनेशन. ठीक है, एंड पॉलिनेशन एजेंट्स, अब ये कैसे पहुंचते हैं, हमने पोलन ग्रेन्स देख लिया कि भाई पोलन ग्रेन पहुंच जाते हैं. नाउ हाउ पोलन ग्रेन्स आर रीचिंग. So pollen grains are reaching through wind, water, insects. क्या हुआ, हनी बी आई, नेक्टर चूसा, ठीक है, नेक्टर लिया, नेक्टर से क्या हुआ, पोलन ग्रेन उसकी बॉडी पे हो गए. अब वो हनी बी एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे गई, वो पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे शेड हो गए. So it is through insect also, it is through wind also, it is through water also. So these are the agents of pollination which help us in pollination. Okay? अब आगे बढ़े. Now let's start how sexual reproduction occur, which is very important to know. मैंने यहाँ बनाया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. इसमें कुछ टर्म्स हैं जो आपको देखने की और समझने की बहुत ज़रूरत है. ठीक है, ये है हमारा स्टिग्मा, स्टाइल, और लास्ट में यहाँ आ गया अपना ओवरी. ठीक है, यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. अब एंथर बस्ट हुआ, it becomes burst, and what will happen, the pollen grains will come out. Now what will happen, this pollen grain will reach towards the stigma of a flower. यहाँ पे आए, ठीक है, जैसे ही पोलन ग्रेन यहाँ पे आए, दे आइडेंटिफाई कि हाँ ये तो सेल्फ है, एंड इट विल स्टार्ट मेकिंग अ पोलन ट्यूब. ऐसे पोलन ट्यूब बनाना शुरू कर देंगे. अब ये पोलन ट्यूब है, इट कंटेन्स 2 मेल गैमेट्स. कितने मेल गैमेट होते हैं इसमें, 2. ये याद रखिएगा, पोलन ग्रेन कितने गैमेट देता है, 2 मेल गैमेट देता है. अब उससे पहले स्ट्रक्चर ऑफ दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. इसके अंदर का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके अंदर का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है. यहाँ वाला जो एरिया होता है दैट इज नोन एज माइक्रोपाइल,
ठीक है, और यहाँ पे 3 सेल इधर होते हैं, 2 सेल बीच में होते हैं, 3 सेल इधर होते हैं। ठीक है, ये वाला जो बीच वाला पोर्शन है ये एग होता है, उसके अगल बगल वाले दोनों उसको बोलते हैं सिनर्जेट्स। ठीक है, बीच वाले में 2 सेल होते हैं, दिस इज ऑल्सो पोलर सेल्स भी बोल सकते हैं, पोलर न्यूक्लियाई भी बोल सकते हैं। और ये वाले जो 3 हैं दैट इज नोन एज एंटीपोडल सेल्स। ठीक है, ये है हमारा अंदर का पोर्शन हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव पोर्शन का। ठीक है, अब क्या हुआ, पोलन ग्रेन आया और पोलन ग्रेन चला, अब ये एंटर कहाँ से करेगा, इस माइक्रोपाइल से। इसको कोई जगह तो चाहिए, इस पोलन ट्यूब को कोई जगह तो चाहिए जहां तक ये पहुंचे, एंड थ्रू दिस द मेल गैमेट इज ऑल्सो एंटरिंग इनसाइड। अब मेल गैमेट कहाँ आ गए, अपने अंदर आ गए। अब जैसे ही अंदर आएंगे, एक मेल गैमेट तो यहाँ एग के साथ फ्यूज करेगा और एक मेल गैमेट यहाँ